Good evening, everyone. As I told you, we are back and let's start the today's webinar. Today's webinar is conducted by Com Shiksha Infotech. Com Shiksha Infotech, which is leading IT training institute in Pune, Pimpri Chinchwad. We have trained and placed more than 700 students till the time, and just because of their skill, their hard working and everything. Today's our webinar is all about ethical hacking. As you know very well, ethical hacking, cyber security, these are the trending topic for today's IT world and even the non IT world. तो आज हम लोग जो एथिकल हैकिंग ये जो पॉइंट है, ये जो डोमेन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. विल अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ टू बीइंग ए एथिकल हैकर. We will understand those career scope in ethical hacking, and also we have some demonstrations जिसको आप practicals कह सकते हो, to just enhance your curiosity and to like come to know exactly what is the field of ethical hacking. So good evening. First of all, let me introduce about myself. I am Vinayak Vaishnav. I am the senior faculty trainer with the Com Shiksha Infotech with more than 4 years vast and drastic experience in the IT and IMS Training Institute. And currently I am working with Com Shiksha Infotech as a cyber security trainer. I bring you today this webinar about the ethical hacking. Before that, let's go through our best achievement of the Com Shiksha till the time. We have some student as Nihal Bhor, Alfia, Sunny, Priyanka, Sushant, Sumit, Prathamesh, Sarvesh, Mayur, Dattaram, and many more students. As I told you previously, more than 700 students we have trained and placed in IT and IMS domain. So that was our biggest achievement which I have shared with you. And now, without spending more time, let's start the discussion about ethical hacking. Before ethical hacking, we need to understand exactly what is hacking. Hacking क्या होता है, हैकिंग क्यों किया जाता है, वो कौन लोग हैं जो हैकिंग करते हैं, and many more things are there. So basically, as I have mentioned here, hacking, it is an art of finding solutions to the real life problem. बेसिकली हैकिंग ये एक टेक्निक है, एक आर्ट है, एक कला है जिसको यूज़ करके आप आपके रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. एंड द सेकेंड पॉइंट विच आई हैव मेंशन हेयर, इट इज़ अ स्किल डिपेंडिंग ऑन अ पर्सनस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. ये स्किल डिपेंड करेगा आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस पे डिपेंड कि आप कितने अच्छे तरीके से हैकिंग करते हो. The third important point is the word hack is not directly to relate to the computers and network. कि हैकिंग ये सिर्फ कंप्यूटर और नेटवर्क के रिलेटेड ही नहीं होता. विदाउट एनी कंप्यूटर एंड नेटवर्क भी हैकिंग हो सकता है. बट द थिंग इज वी आर हेयर टू जस्ट डिस्कस अबाउट कंप्यूटर हैकिंग, नथिंग एल्स. इफ़ यू हर्ड अबाउट द हिप्नोटिज्म एंड ऑल टेक्निक्स आर देयर. कुछ लोग हैं आज भी जो माइंड रीड कर सकते हैं, माइंड पढ़ सकते हैं. ऑल्सो दैट कैन बी अ हैकिंग, वी कैन से यस वो भी हैकिंग है. बट हेयर वी आर टुगेदर जस्ट टू डिस्कस अबाउट अ कंप्यूटर हैकिंग. तो कंप्यूटर हैकिंग क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ एक्सेस ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क रिसोर्सेज. कि जो आपके कंप्यूट डिवाइस रहेंगे या कंप्यूटिंग रिलेटेड जो भी ऑल इक्विपमेंट्स रहेंगे, नेटवर्किंग के रिसोर्सेज हो सकते हैं, इन सारे डिवाइसेस का अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करना, दैट इज़ द हैकिंग. तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे जो वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, अनऑथराइज्ड. अनऑथराइज्ड का मतलब होता है ऐसा एक्सेस करना जिसमें आपको अथॉरिटी नहीं है, यू डोंट हैव द परमिशन बेसिकली. नाउ द प्रैक्टिस ऑफ मॉडिफाइंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू अकम्प्लिश अ गोल ऑफ आउटसाइड ऑफ क्रिएटर्स ओरिजिनल पर्पज. बेसिकली इफ वी सी कि कंप्यूटर हैकिंग क्या होता है, इन दैट केस कि कंप्यूटर को हैक करना या कंप्यूटर के हैकिंग को जो है एक्सेस करना वो भी अनऑथराइज्डली. सो गिव मी वन सेकंड, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन है.
So here are the points for you now. अनऑथराइज एक्सेस ऑफ कंप्यूटर्स, एज आई टोल्ड यू कि अगर आप अनऑथराइजली एक्सेस कर रहे हो कंप्यूटर्स को तो वो आपका हैकिंग कहलाएगा. एंड बेसिकली हैकिंग इज अ प्योर क्राइम, अ क्रिमिनल एक्टिविटी. So we are not promoting you for a hacking, or even no any organization will promote you, encourage you to do the hacking. But concept ये है, if you want to understand the ethical hacking concept, आपको hacking के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है. It is again a most important thing to understand about the hacking. Then it is a process of breaking into the system for personal और commercial gain. Computers का security break किया जाता है hacking में, या तो पर्सनल गेन्स या तो कमर्शियल गेन के लिए. या तो मेरा इंडिविजुअल मेरा कोई उसमें बेनिफिट होगा या तो इंडस्ट्रियल बेनिफिट इसमें हो सकता है बिहाइंड द हैकिंग. अगेन द मलिशियस इंटेंट कॉजिंग सर्वर डैमेज टू आवर इंफॉर्मेशन एंड असेट्स, कि ऐसा भी हैकिंग में हो सकता है कि अगर आपका कोई सर्वर है जहाँ पे इंफॉर्मेशन है या कोई एसेट है, इनको मलिशियस इंटेंट द्वारा डैमेज कर दिया जाना, ये भी हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट हैकिंग. हैकिंग भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. अगेन लेट कम्स टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट हैकिंग इज अ प्योर क्राइम. नाउ व्हाई टू हैक, व्हाट इज द रीजन हैकर जो हैकिंग करते हैं वो क्यों करते हैं. सो आपको भी पता होगा कि सोसाइटी में आए दिन नए नए अटैक्स होते रहते हैं, साइबर अटैक्स होते रहते हैं. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, हैकिंग क्यों किया जाता है, इंटेंशन क्या होता है हैकर्स का. सो कुछ इंटेंशंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. स्पेशली प्रॉफिट, इंफॉर्मेशन कैन बी सोल्ड. अगर प्रॉफिट नहीं होता तो शायद कोई हैकिंग नहीं करता. प्रॉफिट अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग फॉर्मेट में अवेलेबल होता है. अगर मुझे किसी सिस्टम को हैक करना है, किसी कंपनी के नेटवर्क को हैक करना है, तो ऑब्वियसली देयर शुड बी सम प्रॉफिट. In case of money, in case of reputation, in case of data, information and many more. तो जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो डेटा होता है, दैट कैन बी सोल्ड. उनको जो डेटा है वो सेल किया जाता है एंड अगेंस्ट दैट यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज टू स्टील. अगेन किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टील करना है तो उसके लिए भी आपको इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, एज आई एम सेइंग कि इंटेंशंस ऑफ हैकिंग. सेकेंड इंटेंशन इज द प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट करने के लिए भी आजकल बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की जाती है. उनमें से हैकिंग का भी नॉलेज यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म द रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल, सोशल और पॉलिटिकल मैसेजेस को फैलाने के लिए. नेक्स्ट इंटेंशन बिहाइंड द हैकिंग कैन बी चैलेंजेस. एज यू नो, यू ऑल आर कॉलेज स्टूडेंट्स, तो चैलेंजेस फॉर फन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और द थ्रिल ऑफ द पावर, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ. ऐसे कुछ इंटेंशंस के लिए भी हैकिंग का यूज किया जाता है. हैकिंग के कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ. हियर आर सम मेंशंस. सम वेल नोन एंड वर्ल्ड्स डेंजरस हैकिंग अटैक वाज देयर. फर्स्ट इज द रशियंस हैकिंग of US bank in 1994 may have been the first online bank robbery. ये दुनिया का पहला बैंक रॉबरी माना जाता है जिसमें अराउंड $4 लाख का जो है वो टारगेट किया गया था. रशियन हैकर्स की ओर से ये अटैक परफॉर्म किया गया था ऑन यूनाइटेड स्टेट ऑफ बैंक्स. देन इफ यू हर्ड अबाउट द डोमिनोज इंडियन इंसिडेंट. डोमिनोज आपको सबको पता होगा, इट इज अगेन अ वेरी फेवरेट प्लेटफॉर्म ऑफ अ लॉट ऑफ द फूडी पर्सन्स. डोमिनोज पे जो अटैक किया गया था, साइबर अटैक, उस साइबर अटैक्स में अराउंड 1 मिलियन यूजर्स का डेटा जो है उस डेटा को हैक किया गया था, उस डेटा को लीक किया गया था. देन इफ यू नो द पुणेज बेस्ड कॉस्मोस बैंक, दैट बैंक रॉबरी वाज कंडक्टेड इन अगस्त 2018 जिसमें 94 करोड़ रुपीज वॉज स्टोलन. 94 करोड़ रुपीज़ को हैक किया गया था. अकाउंट से पैसा जो है वो विड्रॉ कर दिया गया था फ्रॉम कॉस्मोस बैंक. नेक्स्ट अटैक, दैट वाज द गेम, वेरी डेंजरस गेम. ये आपका एक आपने भी सुना होगा, गूगल पे कहीं तो पढ़ा होगा, ब्लू व्हेल गेम, जिसको द डेथ गेम भी कहा जाता है. नवंबर 2015 में इसको लॉन्च किया गया था बाय अगेन अ रशियन हैकर. तो इस गेम में अगर आप इस पे स्टडी करते हो, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करते हो, तो यू विल कम टू नो दैट गेम वाज वेरी डेंजरस गेम. इस गेम में 50 स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती थी एंड द लास्ट स्टेप वाज द सुसाइड. तो मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स जो होते थे वो इस गेम के टारगेट बनते थे.
देन पोस्ट अटैक ऑफ द उरी सर्जिकल स्ट्राइक, अगर आपको पता ही होगा कि जो उरी अटैक हुआ था, आफ्टर उरी अटैक साइबर एक्सपर्ट्स जो है, इंडियन साइबर एक्सपर्ट्स, उनके द्वारा जो हमारा पड़ोसी कंट्री है उनके वेबसाइट्स पे भी बहुत बड़ा साइबर अटैक किया गया था, जिसमें अराउंड 550 वेबसाइट्स जो है वो अंडर कंट्रोल रखी गई थी. सो दीज आर द हैकिंग एग्जाम्पल्स. नाउ कम टू नो एग्जैक्टली हु आर द हैकर्स. ये हैकर्स कौन होते हैं, कहाँ होते हैं, ये क्या करते हैं, हाउ दे बिकेम द हैकर्स एंड ऑल थिंग्स. सो बेसिकली हेयर आर सम पॉइंट्स कि हैकर कौन होते हैं. हैकर्स आर द डेवलपर्स, the peoples who are having a good knowledge about programming languages. As you know, there are a lot of programming languages like C, C++, Java, .NET, Python, Perl, Ruby, PHP. बहुत सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती है. So the person who are good in the computer languages, programming languages, he can be a hacker. Hackers are those geek and scientists who provide the IT solutions to a real life problems. Basically the IT peoples. जिन लोगों को IT का बहुत अच्छा नॉलेज है, they can be a hacker. हैकर थिंग्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज एंड द फाउंड आउट ऑफ द बॉक्स. हैकर्स जो होते हैं वो कभी भी किसी लिमिटेड एरियाज में नहीं सोचते हैं. दे ऑलवेज थिंक बियॉन्ड द बाउंड्रीज, कि बाउंड्रीज के बाहर जाके वो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को. हैकर्स कैन फॉल इनटू द 3 टाइप्स एज आई हैव मेंशन. सर आपको भी ये बहुत कॉमन चीज़ें पता होंगी. हैकर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं: वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर एंड द ग्रे हैट हैकर. So basically what is a white hat hacker, black hat hacker and grey hat hacker? Let me explain in a short. White hat hacker basically security experts होते हैं जो सिक्योरिटी एनहांस करने का काम करते हैं. साइबर क्राइम जो होते हैं उनको रोकने का काम करते हैं. इसके अगेंस्ट में होता है ब्लैक हैट हैकर. दोज आर द प्योर क्रिमिनल्स. ब्लैक हैट हैकर जो कि काम करते हैं सिक्योरिटी को ब्रेक करने का, डेटा ब्रीच करने का और एनी अदर हैकिंग अटैक्स. The third category is a grey hat hacker. What is a grey hat hacker? Basically, this is the combination of both white hat and black hat. So sometimes the people or hackers needs to work as a black hat hacker. Sometimes the same person wants to work as a white hat hacker. The combination of white and black hat hacking is the grey hat hacking. Now moving ahead, there is a group of anonymous. ये एक एग्जाम्पल है. हैकिंग एक्टिविटीज जो होती है वो इंडिविजुअली भी परफॉर्म की जाती है और ग्रुप में भी परफॉर्म की जाती है. सो इफ यू नो अनोनिमस इज द ब्लैक हैट हैकर्स ग्रुप, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस हैकर्स ग्रुप. इनका स्लोगन है, देखिए यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, वी आर अनोनिमस, वी आर लीजन, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट, एक्सपेक्ट अस. सो ये जो अनोनिमस ग्रुप है ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग हैकर्स का ग्रुप है जो कि बिल्कुल डिसेंट्रलाइज है. डिसेंट्रलाइज इन द सेंस नोबडी नोज कि हाउ मच मेंबर्स आर कनेक्टेड विद द अनोनिमस, देन हु आर द मेंबर्स, फ्रॉम वेयर अनोनिमस ग्रुप इज ऑपरेटिंग, एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज हिडन. नाउ मूविंग अहेड, ऐसा नहीं कि दुनिया में सिर्फ हैकर्स के ही ग्रुप होते हैं. देयर इज द केरला साइबर वॉरियर. ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, प्राउडी चीज़ है कि यस कि व्हाइट हैट हैकर लाइक अ केरला साइबर वॉरियर. दिस इज द इंडियन साइबर एक्सपर्ट ग्रुप. ये ग्रुप इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करता है. दे आर हैविंग द ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटी बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द सिक्योरिटी, नॉट फॉर हैकिंग. मूविंग अहेड, ग्रुप जो आपके हैकर्स के ग्रुप होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ग्रुप ही हैकर्स या एथिकल हैकर के होते हैं. देयर आर सम इंडिविजुअल्स, कुछ लोग भी है ऐसे जो कि मैजिशियन है. देयर इज अ बेस्ट वर्ड इज अ मिस्टर केविन मिटनिक. ये हैकिंग के दुनिया का एक सबसे बड़ा नाम माना जाता है. मिस्टर केविन मिटनिक हु हैज स्टार्टेड टू हैक द कंप्यूटर एट द एज ऑफ द 12 years only. So at the age of the 12 years, he get the free train pass to travel around the city. After few years, he hacked the Pentagon, which is the United States of America security organization. WikiLeaks नाम का एक वेबसाइट केविन मिटनिक चलाया करते थे. WikiLeaks एक ऐसा वेबसाइट था जो कि अगेंस्ट द US गवर्नमेंट जो भी डॉक्यूमेंट्री होता था उनको पब्लिश किया करता था. So again, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, एज अ सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ही इज वर्किंग नाउअडेज. मिस्टर केविन मिटनिक, आप इनका डॉक्यूमेंट्री भी गूगल पे सर्च कर सकते हो. देयर आर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ओवर द गूगल. नाउ
basically what is the hacking and why do we need to do the hacking. So as you know very well, I believe in a practicals, hands-on practicals. So we are again having some demonstrations for you. सो विंडोज़ हैकिंग क्या होता है, विंडोज़ के हैकिंग के बारे में हमारे पास एक प्रैक्टिकल है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. So basically there is a registry part in Windows. Now I know very well you all are the Windows user. Windows is very familiar operating system with everyone. So Windows में अगर आपको पता होगा कि registry नाम का एक चीज़ होता है which is the backend thread, background thread इसको माना जाता है. registries जो होती है ये आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की भी होती है. इफ़ वी मैनिपुलेट द रजिस्ट्रीज, अगर हम लोग रजिस्ट्री को मैनिपुलेट कर पाते हैं, चेंजेस कर पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं. वी कैन ब्लॉक द यूएसबी स्टोरेज ऑल्सो फ्रॉम द स्टीलिंग ऑफ द डेटा, ये उसका बेनिफिट होगा. एंड वाई वी आर गोइंग टू चेंज द प्रोसेसर नेम, ये भी आपको बहुत ही जल्द मैं बता दूंगा वंस वी हैव डन दिस प्रैक्टिकल. एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन है. इसके लिए मैं सबसे पहले एक विंडोज मशीन को अपने एक्सेस करने जा रहा हूँ. So now this is our Windows machine which is in front of you. ये जो Windows machine है या हम लोग जो Windows हैकिंग करने जा रहे हैं, बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो Windows का मशीन है इसके प्रॉपर्टीज़ को जब मैं एक्सेस कर रहा हूँ, here you will come to know कि हमारा जो कंप्यूटर है जिस Windows मशीन पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पे प्रोसेसर का डिटेल दिया हुआ है, दैट इज Intel Core i5. सो आई एम यूजिंग Intel Core i5, ये प्रोसेसर मैं यूज़ कर रहा हूँ. इफ़ यू नो द कॉस्ट ऑफ Intel Core i5 इज़ अराउंड 15 to 20,000 नाउअडेज. अगर मैं इस रजिस्ट्री को इस विंडोज़ के मशीन्स में रजिस्ट्री अगर चेंज करता हूँ और इस प्रोसेसर के नाम को चेंज करता हूँ, कोई हायर या कोई महंगा प्रोसेसर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या इसका मैनिपुलेट करता हूँ उसका सेटिंग, तो मेरे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा एंड इमीडिएटली मेरे कंप्यूटर का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा. So how to edit the registry? Let me show you quickly. If you know there is the registries editing, so for that I am going into the run tab and I am going to give the command regedit which is stand for registry editing. इस registry editing में यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से H की लोकल की मशीन को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ. इसमें हार्डवेयर को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ. इनसाइड ऑफ द हार्डवेयर देयर इज अ टैब ऑफ डिस्क्रिप्शन. In description there is a system and here is a central processor. Central processor में अगर आप राइट साइड में देखोगे here are some registries. तो एक रजिस्ट्री है जिसका नाम है प्रोसेसर नेम स्ट्रिंग और यहाँ पे आप देखोगे कि मेंशन किया हुआ है कि which processor you are using, Intel Core i5. So what I am going to do, I am going to change this entire registry. मैं ये पूरा रजिस्ट्री चेंज करने जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ दैट आई एम यूजिंग Intel Core i9 CPU. अगर आपको पता होगा कि आज के डेट में मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे कॉस्टली प्रोसेसर चल रहा है दैट इज Intel Core i9. जैसे मैंने यहाँ से जो रजिस्ट्री का वैल्यू है वो मैनिपुलेट किया, चेंज किया, एंड नेक्स्ट टाइम इफ़ यू सी कि आपका जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें अगर आप आके देखते हो, so you can see here now I am using Intel Core i9 CPU जिसका मार्केट में कॉस्ट आज के डेट में है 70 to 80,000 रुपीज़. सिर्फ प्रोसेसर का कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट अबाउट एंटायर कंप्यूटर. तो इतना रैपिडली चेंज मैंने प्रोसेसर का नाम चेंज किया है. अब अगर इस कंप्यूटर को कोई और खरीदेगा तो ऑब्वियसली वो कंप्यूटर का प्रोसेसर चेक करेगा, हियर आई एम यूजिंग Core i9. तो ये चीज़ आपको बताने के पीछे क्या लॉजिक है, बेसिकली अगेन आई एम गिविंग यू अ वेरी काइंड सजेशन कि वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी वन फॉर एनी क्रिमिनल एक्टिविटी और एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, बट येस फॉर योर ओन नॉलेज, फॉर योर ओन सिक्योरिटी. अगर आप कोई कंप्यूटर खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, तो उसका प्रोसेसर आप कौन सा यूज़ कर रहे हो ये आप यहाँ से जब चेक करते हो तो ये वैल्यूज़ मैनिपुलेट किया हो सकता है. तो आप कहाँ से कंप्यूटर का एक्चुअल वैल्यू चेक करोगे? तो अगर आपको पता होगा कि कंप्यूटर में एक बायस नाम का सॉफ्टवेयर होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसको कहा जाएगा. जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो ये बायस जो होता है, बायस के सेटिंग में आपको आपका कंप्यूटर का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मिलेगा. सो डोंट ओनली बिलीव ऑन योर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन इन द प्रॉपर्टीज. दिस वाज जस्ट अ
kind suggestion for everyone behind the registry hacking. Now again come to the point कि विंडोज हैकिंग जो है प्रोसेस आपका जो है रजिस्ट्री एडिटिंग का, रजिस्ट्री एडिट करके भी विंडोज़ की बहुत सारी सेटिंग्स मैनिपुलेट की जा सकती है, चेंज की जा सकती है, जिसको यूज़ करके आप विंडोज़ हैकिंग कर सकते हो. मूविंग अहेड, नाउ द पॉइंट इज व्हाई डू वी नीड द एथिकल हैकिंग. अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया दैट वाज ऑल अबाउट द हैकिंग. नाउ हेयर इज सम पॉइंट्स विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड द एथिकल हैकिंग. एथिकल हैकर्स क्यों चाहिए होते हैं? देखो, किसी भी कंपनी में जाते हैं हम लोग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वो चाहे आईटी का हो या नॉन आईटी का हो, यू विल गेट सम कंप्यूटर्स, सम सर्वर्स, सम डेटाबेस, सम वेब कैमरा, सम वेबसाइट्स. इन सारी चीज़ों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हर एक कंपनी में सिक्योरिटी का टीम होता है, आईटी सिक्योरिटी का, जिसको हम लोग कहेंगे एथिकल हैकर्स. तो ये जो एथिकल हैकर्स है, व्हाट एथिकल हैकर एक्चुअली डज, ethical hackers are responsible to prevent the external attacks from the hackers. जो external hackers होते हैं, जो कंपनी पे अटैक करते रहते हैं, to steal the data, to destroy the data, to hack the network, इन सारी चीज़ों से अवॉइड करने के लिए ये ethical hackers का जो टीम होता है ये कंटिन्यूसली वर्किंग होता है. What kind of attack can be there? यहाँ पे मेंशन है, देखिएगा, सोशल इंजीनियरिंग अटैक, ऑटोमेटेड अटैक्स, डॉस अटैक, वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस, एक्सीडेंटल ब्रीचेस, ऑर्गेनाइजेशन अटैक, नेटवर्क अटैक्स. ये बहुत अलग अलग तरीके के नेटवर्क अटैक्स या तो आपके कंप्यूटर अटैक्स होते हैं जो हैकर्स परफॉर्म करते हैं. टू प्रिवेंट दोज ऑल काइंड ऑफ अटैक, एथिकल हैकर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो इन सारे अटैक से अपने कंपनी को, अपने डेटा को सेफ और सिक्योर रखे. मूविंग अहेड, हेयर इज द प्रोसेस कि एथिकल हैकिंग क्या होता है, एथिकल हैकिंग का प्रोसेस कैसा होता है. एज यू नो कि हर एक एथिकल हैकर जो होता है वो एक प्रोसेस फॉलो करता है. बेसिकली वो प्रोसेस क्या है, आप देख रहे हो कि राइट साइड में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए. इनमें से सबसे पहला पॉइंट है रिकॉनिसेंस. इसी को इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी कहा जाता है, फुटप्रिंटिंग भी कहा जाता है. सो बेसिकली वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन दिस ऑल पॉइंट्स. रिकॉनिसेंस क्या होता है कि किसी भी नेटवर्क को, किसी भी कंपनी को जब आप टारगेट कर रहे हो, इन केस ऑफ एथिकल हैकिंग, मैं आपको पहले ये समझा दूं कि एथिकल हैकर हैकिंग नहीं करता है. एथिकल हैकर जो प्रोसेस करेगा वो उसके कंपनी के सिक्योरिटी एनहांसमेंट के लिए रहेगा, ताकि हैकर से पहले एथिकल हैकर को ये पता चल जाए कि कहाँ से आपका नेटवर्क हैक हो सकता है, कंप्यूटर हैक हो सकता है, ताकि वो एथिकल हैकर उस लूप होल को फिल आउट कर सके, पैच आउट कर सके. तो ये जो प्रोसेस है, इसमें से रिकॉनिसेंस जो सबसे पहला स्टेप है, रिकॉनिसेंस, इसको हम लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोल सकते हैं. सो बेसिकली जो टारगेट होता है, टारगेट का इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसके रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जो आपको अटैक परफॉर्म करने में हेल्प करता है. अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए दो अलग अलग मेथड्स हैं. आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन भी कलेक्ट कर सकते हो एक्टिवली, और दूसरा पैसिवली भी कर सकते हो फ्रॉम द न्यूज़ लेटर एंड ऑल थिंग्स. वंस यू गॉट द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट योर टारगेट, देन हैकर्स कैन और एथिकल हैकर कैन स्कैन द नेटवर्क. ये जो स्कैनिंग का पार्ट है, बेसिकली इसमें एथिकल हैकर आपके नेटवर्क को स्कैन करते हैं. इसमें ओपन पोर्ट, क्लोज पोर्ट्स पता चलते हैं, डिवाइसेस वल्नरेबल है या नहीं है वो पता चलता है. आफ्टर द रिकॉनिसेंस एंड स्कैनिंग देयर इज अ पार्ट दैट इज अ फेज ऑफ द गेनिंग एक्सेस, कि उस नेटवर्क का, उस कंप्यूटर का एक्सेस कैसे लिया जाए. वंस यू गॉट द एक्सेस, एक्सेस मिलने के बाद उस एक्सेस को मेंटेन भी किया जाता है, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कंपनी का सर्वर का एक्सेस मिला एंड अगेन विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड एक्सेस डिस्ट्रॉय हो गया. सो वंस यू गेट द एक्सेस, यू शुड मेंटेन द एक्सेस. और एक्सेस मेंटेन करने के बाद वॉट एवर द एथिकल हैकिंग और एथिकल हैकर वॉज द इंटेंशन, उनका जो इंटेंशन था उसको कंप्लीट करने के बाद क्लियरिंग द ट्रैक. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो ट्रैक होते हैं, जो लॉग होते हैं, उनको क्लियर किया जाता है ताकि किसी को पता ना चले. एंड फाइनल लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज द रिपोर्टिंग. रिपोर्ट बनाना पड़ता है एक एथिकल हैकर को कि मैंने किस तरह से कंपनी का नेटवर्क स्कैन किया, किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदरिंग किया, किस तरह से मैंने लूप होल फाइंड आउट किए,
किस तरह से मैंने सारी चीज़ों को परफॉर्म किया, इसका एक रिपोर्ट जनरेट किया जाता है। ये रिपोर्ट जनरेट करके एथिकल हैकर कंपनी को सबमिट करता है और उसके बाद कंपनी एक्शन लेती है कि किस तरह से हम लोग अपने कंपनी के नेटवर्क को, सर्वर्स को सिक्योर रख सकते हैं। सो एथिकल हैकर आर बेसिकली अ वाइट हैट हैकर्स जो सिक्योरिटी बढ़ाने में कंपनीज का हेल्प करते हैं। सो अगेन आप ये जो एथिकल हैकर्स होते हैं ये आपके आईटी इंडस्ट्रीज में भी हो सकते हैं या तो नॉन आईटी कंपनीज में भी हो सकते हैं, बिकॉज हर एक कंपनी के लिए उनका नेटवर्क, उनका डेटा, उनका इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ कम टू द इंटरनेट। ये एक इंटरनेट का स्लाइड मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत से आप में से लोग इनको जानते भी होंगे। इट इज़ अ वेरी कॉमन फैक्टर अबाउट इंटरनेट। बेसिकली इंटरनेट जो है आपका ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। सो वॉट एवर इंटरनेट वी आर यूजिंग, जो भी हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, वॉट एवर, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ दिस सरफेस वेब जो हम लोग यहाँ पे सबसे ऊपर देख रहे हैं। दैट मीन्स what are the publicly available data or database, that is just a surface web, and trust me आप ये जान के शॉक हो जाओगे कि the surface web is only a 4% of entire internet. That means हम लोग अक्सर बोलते हैं कि गूगल बहुत बड़ा है, इंटरनेट बहुत बड़ा है, गूगल के पास सारी इंफॉर्मेशन है, बट स्टिल इट इज जस्ट अ 4% ऑफ एंटायर इंटरनेट. Now remaining 96% is occupied with the deep web and dark web. जैसे आप देख रहे हो आपकी इस छोटे से इमेज में डीप वेब जो है, कि डीप वेब में क्या होता है, बेसिकली एकेडमिक इंफॉर्मेशन, मेडिकल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, साइंटिफिक रिपोर्ट्स, अगेन ऑल काइंड ऑफ सेंसिटिव एंड इंफॉर्मेशन एंड क्रेडेंशियल्स आर स्टोर्ड इन डीप वेब. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका आपको बता दूं कि अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे व्हाट इज द फेसबुक पासवर्ड ऑफ विनायक वैष्णव, यू विल नेवर गेट योर माई पासवर्ड. बेसिकली कि आप सरफेस वेब पे सर्च कर रहे हो, जबकि जो पासवर्ड है, क्रेडेंशियल है, ये आपका डीप वेब में सेव होता है, डीप वेब में उसको स्टोर किया जाता है. सो इजीली वी कैन नॉट गेट द एक्सेस ऑफ डीप वेब. व्हाई? बिकॉज अगेन इट इज अ सिक्योरिटी कंसर्न. देयर आर ऑल क्रेडेंशियल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैज बीन स्टोर्ड. थर्ड फेज ऑफ इंटरनेट इज अ डार्क वेब. Dark web is very dangerous field of the internet where all hackers are being activated. All illegal activities are going to perform in the dark web, like illegal information sharing, drug trafficking, human trafficking, and many more. So this is the structure of internet. Ethical hackers should aware about the all phases of network and internet. Moving ahead, here is the two different options to use the internet. Basically ethical hackers and hackers are using these two technologies to explore their knowledge, to get the more and more knowledge. The first is Google Doc and another one is the root, onion root. Basically ये एक इंटरनेट का ब्राउजर है. ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ गूगल डॉक, व्हाट इज द यूज ऑफ द अनियन रूट, टॉर, ये जो ब्राउजर है ये क्यों यूज किया जाता है, आई विल टेल यू शॉर्टली. First, let's understand what is a Google Doc. Google Doc is basically Google hacking database. ये Google ने खुद डेवलप किया हुआ प्लेटफॉर्म है. मेथड ऑफ सॉर्टेड रिजल्ट्स ब्राउजिंग, जो आप इंटरनेट ब्राउजिंग पे इंफॉर्मेशन सर्च करते हो उसको अगर आपको सॉर्ट करना है या लिमिटेड इंफॉर्मेशन इफ यू वांट, तो आप गूगल डॉक का यूज करते हो. सो लेट मी शो यू वेरी शॉर्ट एंड क्विक. इफ यू नो आई एम गोइंग टू सर्च सम इंफॉर्मेशन ओवर द गूगल. ये आपका गूगल का ब्राउजर है बेसिकली. किसी का माइक ऑन है, कुड यू प्लीज टर्न ऑफ योर माइक सो दैट वी कैन हैव अ स्मूथ कम्युनिकेशन. थैंक यू. तो देखिए गूगल पे मैंने ब्राउजर में एक कीवर्ड टाइप किया न्यूज, और ये न्यूज वर्ड टाइप करते ही हेयर यू गॉट द रिजल्ट्स. आप यहाँ पे देख सकते हो अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ रिजल्ट वी फाउंड विद इन ओनली 0.36 सेकंड. 0.36 सेकंड में न्यूज से रिलेटेड इतने सारे रिजल्ट्स हमें मिले हैं कि जिनका नंबर भी शायद हम लोग बड़े मुश्किल से पढ़ पाएंगे. तो इतने सारे बड़े रिजल्ट्स, हैवी नंबर ऑफ द रिजल्ट्स में से मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए था या मुझे सॉर्टेड इंफॉर्मेशन चाहिए था, इसको अगर मुझे यूज करना है, दैट टाइम आई विल हैव टू यूज अ गूगल डॉक. नॉट ओनली अबाउट न्यूज या कोई भी चीज़, कोई भी कीवर्ड अगर आप टाइप करोगे,
आपको उतना ही बड़ा नंबर मिलेगा। नाउ कम टू द गूगल डॉक, हाउ गूगल डॉक विल हेल्प यू, आई विल शो यू। आपको बस गूगल डॉक सर्च करना है, सबसे पहला वेबसाइट आएगा एक्सप्लॉइड डेटाबेस। ये गूगल हैकिंग डेटाबेस है। यहाँ पे मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दे दूँ शॉर्ट में कि सबसे पहले यहाँ पे एक डेट आएगा, डेट कॉलम, जिसमें वो डेट रहेगा जिस डेट पे वो डॉर्क पब्लिश किया गया है। सेकंड, ये एक्चुअल आपका गूगल डॉर्क है, या इसको आप ऑपरेटर भी कह सकते हो। ये एक ऑपरेटर है जिसको आपको यूज करना है टू सॉर्ट द इंफॉर्मेशन। थर्ड थिंग इज कैटेगरी। कैटेगरी कॉलम में इस गूगल डॉक में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाला है वो चीज मिलता है। एंड द फोर्थ कॉलम इज अबाउट ऑथर, हु इज द ऑथर, हु इज द फाउंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर गूगल डॉक। एक पेज पे 15 रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और ऐसे अगर आप यहाँ पे देखोगे अराउंड 514 पेजेस आपके पास है। देयर आर 514 पेजेस। यहाँ पे एक सर्च टूल बॉक्स भी है क्विक, जिससे आप गूगल डॉक को ऑपरेटर को सर्च कर सकते हो। सो बेसिकली एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड सम फॉर्म, जो गूगल फॉर्म, अगर आपने ये कॉम शिक्षा इन्फोटेक का सेमिनार ज्वाइन करने से पहले कोई गूगल फॉर्म फिलअप किया होगा, सो दैट काइंड ऑफ फॉर्म आई एम गोइंग टू सर्च। हेयर इज गूगल फॉर्म ऑपरेटर्स आर अवेलेबल। किसी भी एक ऑपरेटर को मैं यहाँ से सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये ऑपरेटर है गूगल डॉक का, जिसमें लास्ट में प्रीवियस में रिस्पॉन्स नाम का वर्ड लिखा हुआ है, मैं इस ऑपरेटर को कॉपी कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर इट इन अ न्यू टैब। तो रिजल्ट आपको कितना मिला है, देखो 3800 रिजल्ट आपको मिला है। एंड आई एम गोइंग टू एक्सेस वन बाय वन दैट ऑल काइंड ऑफ फॉर्म्स। अब ये फॉर्म्स मुझे नहीं पता कि किसने बनाए हुए हैं या कब बनाए हुए हैं, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ दैट फॉर्म्स। आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर वन बाय वन एंड नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट वी विल गेट इन एवरी लिंक। कि गूगल फॉर्म जो होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग इंडस्ट्रीज गूगल फॉर्म पब्लिश करते हैं टू गेट सम इंफॉर्मेशन, टू गेट सम डेटा। और इसके जो 3800 रिजल्ट्स हमें मिल चुके हैं, अगेन नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर वन बाय वन गूगल फॉर्म सो दैट हमें इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। सो नाउ हेयर यू कैन सी देयर इज अ GFAN एशिया पैसिफिक, ये एक फॉर्म है। ये फॉर्म में जो भी चीज़ें मेंशन है उसके रिस्पॉन्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं, बट स्टिल देर आर नो एनी सिंगल रिस्पॉन्स इज है। दूसरे लिंक में अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म था आपका प्रोसीडिंग IOSKL 2015 का। इसके रिस्पॉन्सेज देखो 23 रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं, 23 रिस्पॉन्सेज, एंड ऑल रिस्पॉन्सेज यू कैन एक्सप्लोर योर ओन। आप खुद इस रिस्पॉन्सेज को दे सकते हो। बेसिकली रिस्पॉन्सेज कौन दे सकता है, द ओनर ऑफ दैट फॉर्म ओनली। बट ये कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो गूगल पे डिस्क्लोज किया गया है या हैक किया गया है, या विद द हेल्प ऑफ गूगल डॉक वी आर एबल टू एक्सप्लोर द ऑल रिस्पॉन्सेज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। सो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल ऑफ गूगल फॉर्म फ्रॉम द गूगल डॉक। आई एम गोइंग टू सर्च अनदर कीवर्ड, व्हाट्सअप। आपका सबका फेवरेट व्हाट्सअप। इस व्हाट्सअप को अगर आप देखोगे, हेयर आई गॉट ओनली 4 डिफरेंट ऑपरेटर्स। इसमें से सबसे लास्ट ऑपरेटर अगर आप देखोगे यहाँ पे मेंशन है व्हाट्सअप इमेजेस। इस एक डॉक को अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ मेरे गूगल में, सो अराउंड 1040 रिजल्ट्स मुझे मिले हैं अलग अलग वेबसाइट जहाँ पे व्हाट्सअप का डेटा, व्हाट्सअप की इमेजेस रखी हुई है। आई डोंट नो इवन कि ये डेटाबेस किसका है, कहाँ पे रखा हुआ है, कब एक्सेस किया गया था, एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर। यहाँ पे अगर आप देखोगे, here are the list of the images. I am not going to open the image because I don't know ये डेटा किसका है, क्या है। For the security reason, I am not going to open that database. But बस again for your kind information कि ऐसी भी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है। अगेन कि किसी का भी व्हाट्सएप का डेटा एक्सेस किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, तो उसको हैकर्स क्या करते हैं, गूगल पे या अगेन ऑन अ डीप वेब, डार्क वेब उसको एक्सेस कर देते हैं। So this is the content again about WhatsApp. Here as I told you 1040 results we have received. Again आप यहाँ पे अलग अलग कीवर्ड्स टाइप कर सकते हो, पासवर्ड के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। सी पासवर्ड के रिलेटेड भी इतने सारे ऑपरेटर्स हैं। किसी भी ऑपरेटर को आप कॉपी कर लो और गूगल पे कॉपी पेस्ट कर दो तो यू विल गेट द रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये सारी चीज़ें हैं गूगल डॉक के रिलेटेड। आपको जब भी सफिशिएंट टाइम मिले आप उसको एक्सप्लोर कीजिएगा। लेट्स
गेट बैक टू आवर डिस्कशन, देर इज द अनियन रूट। द अनियन रूट जो है बेसिकली दिस इज अ ब्राउजर, ये एक ब्राउजर ही है आपका। इसको टॉर को द अनियन रूट कहा जाता है, शॉर्ट में टॉर हम लोग इसको कहेंगे। ये आप विंडोज़ पे भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, ये लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। बेसिकली ये ब्राउजर कैसा होता है, हाउ इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम योर अदर ब्राउजर्स, व्हाई हैकर्स आर गिविंग द फर्स्ट प्रायोरिटी टू यूज द टॉर ब्राउजर, ये सारी चीज़ों का आंसर जो है आपको आने वाले 2 या 3 मिनट में मैं ज़रूर दूंगा। बेसिकली सबसे पहले ये समझिए कि अगर मैं गूगल यूज़ कर रहा हूँ, गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, क्रोम इज़ अ वेरी बेसिक एंड ऑर्डिनरी ब्राउजर फॉर ऑल। इस पर अगर मैं टाइप करता हूँ शो माई IP, ये मैंने एक कीवर्ड यहाँ पे टाइप किया शो माई IP, एंड हेयर यू कैन सी कि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा ये मेरा एक पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे बता रहा है। बेसिकली माई IP एड्रेस इज 103.109.14.246। अब ये जो मेरा एक्चुअल IP एड्रेस है, मैं चाहे गूगल क्रोम यूज़ कर लूँ, चाहे फायरफॉक्स यूज़ कर लूँ, चाहे ओपेरा मिनी यूज़ कर लूँ, दिस इज माई द एक्चुअल IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है ना कि आपके कंप्यूटर की पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, कि अगर मैं कोई भी क्राइम करूँ तो विद द हेल्प ऑफ दिस IP एड्रेस कॉप्स और पुलिस कैन गेट मी इजीली। नीचे अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पे आप देखो लोकेशन पुणे का पता चल रहा है, आई एम सिटेड इन पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया। यहाँ पे आप राइट साइड में देखोगे तो एक्चुअल मैप भी गूगल पे आपको आ जा रहा है कि मेरा जो डिवाइस है, मेरा डिवाइस का जो IP एड्रेस है उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी यहाँ पे पता चल रहा है। सो दिस इज द योर नॉर्मल ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम और फायरफॉक्स। बट इफ आई एम गोइंग टू यूज अ टॉर, नाउ ये जो विंडो आपके सामने ओपन किया गया है, दिस इज द टॉर ब्राउजर, द अनियन रूट, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, हैकर्स, एथिकल हैकर्स का सबसे पहला पसंद होता है। तो वाई द पीपल, हैकर्स और एथिकल हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आर गिविंग द फर्स्ट प्रायोरिटी टू टॉर? इसमें ऐसा क्या है जो आपके गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स में नहीं है? लेट मी एक्सप्लेन शॉर्टली। यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ वो सेम चीज़ जो हम लोगों ने गूगल क्रोम पे टाइप किया था, शो माई IP, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका IP एड्रेस जो क्रोम में यहाँ पे दिखा था, पुणे का लोकेशन यहाँ पे बताया गया था, बट इन टॉर ब्राउजर यू विल गेट शॉक कि आपका एक्चुअल IP एड्रेस यहाँ पे नहीं बताया जाता है। एनी फेक IP एड्रेस यू विल गेट। आप यहाँ पे IP एड्रेस देख सकते हो, फाइनली वी गॉट द IP एड्रेस 109.70.100.89, जो कि बिल्कुल मेरे एक्चुअल IP एड्रेस से अलग है। अगर IP एड्रेस आप ध्यान में नहीं रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंट्री देखिए, विच कंट्री आई एम यूजिंग, आई एम इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कंट्री के अंदर मैं हूँ, वियना रीजन के अंदर हूँ। बेसिकली आई एम इन यूरोप। अब बेसिकली मैं बैठा हुआ पुणे में हूँ, इन पुणे लोकेशन, स्टिल आई कैन यूज द इंटरनेट एंड सर्विसेज फ्रॉम ऑस्ट्रिया कंट्री। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सिंगल ऑस्ट्रिया कंट्री का मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, लोकेशन भी आपको बताएगा, वो ऑस्ट्रिया का ही बताएगा। सो बेसिकली आई एम यूजिंग इंटरनेट फ्रॉम ऑस्ट्रिया कंट्री। So this is the one of the biggest advantages of the Tor browser. ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑस्ट्रिया एक ही कंट्री का इंटरनेट आपको एक्सेस करने के लिए मिलेगा, यू कैन यूज द इंटरनेट फ्रॉम एनी कंट्री, एनी रीजन, एनी लोकेशन। ये आपको टॉर अलाउ करता है। कैसे? सी है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर वन थिंग, दैट इज अ न्यूज। अब न्यूज को जब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, हेयर इट विल आस्क मी कि आपको कौन से कंट्री से इंटरनेट एक्सेस करना है। बेसिकली टॉर विल गेट अ वेरी हाई बैंडविड्थ टू यूज, क्योंकि ये नॉर्मल ब्राउजर से अलग है, ये कंप्लीटली इंक्रिप्टेड ब्राउजर माना जाता है। तो हो सकता है ये बहुत बार स्लो वर्कआउट करे, बहुत स्लो काम करेगा एज कंपेयर टू योर अदर ब्राउजर्स। बेसिकली टॉर जो है ये अलग कैसे है, तो मैं आपको ये एक चीज़ समझा दूं कि आपके नॉर्मल ब्राउजर्स जो होते हैं, जैसे आपका गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इनके डिफॉल्ट सर्च इंजन जो होते हैं वो गूगल होते हैं या तो याहू। बट ये जो आपका टॉर ब्राउजर है, यहाँ पे आप URL में सर्च कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन जो है वो डकडकगो ये यूज किया जा रहा है। डकडकगो ये दुनिया का सबसे सिक्योर आपका सर्च इंजन माना जाता है, और इसमें से मिलने वाले रिजल्ट्स भी बहुत ही यूनिक और अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको एक कीवर्ड टाइप किया न्यूज़, और यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, हियर इज द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज।
जर्मनी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, बल्गेरिया, कनाडा, किसी भी कंट्री को आप चूज कर लो, आप पर्टिकुलर उस कंट्री में जाके या उस कंट्री का नेटवर्क आप यूज करने लग जाओगे। बेसिकली इफ आई एम ट्राइंग टू गो विद जापान, अब मैं अगर जापान सर्च कर रहा हूँ तो सारे जापान के ही न्यूज़ जो रिजल्ट्स है वो मुझे मिलते रहेंगे। तो बेसिकली टॉर आपको अलाउ करता है टू एक्सेस द इंटरनेट अनोनिमसली, अनोनिमसली इन द सेंस जैसे आपको मिस्टर इंडिया पता होगा, सेम लाइक दैट, इन दैट वे आप इंटरनेट किसी भी कंट्री का यूज कर सकते हो, आईपी एड्रेस किसी भी कंट्री के यूज कर सकते हो विद अनोनिमिटी, 100% अनोनिमिटी। तो ये है आपका टॉर ब्राउजर एंड हाउ इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्राउजर लाइक अ क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। नाउ मूविंग अहेड in the discussion after the Google hacking database, Google Doc and the Tor, here is the scope of a career in the ethical hacking. If you are thinking कि ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद is there any option to establish my career? Definitely. You can get a very good career platform in the ethical hacking and cyber security field, because if you know nowadays everything is going to become online. अब कोई चीज़ ऐसा है ही नहीं जो ऑनलाइन नहीं बिकता हो या ऑनलाइन अवेलेबल ना हो। किसी भी कंपनी को अगर आप देखोगे, कंपनी अगेन एज आई टोल्ड यू, वो चाहे टेक्निकल आईटी का कंपनी हो या नॉन आईटी का कंपनी हो, हर एक कंपनी में सिक्योरिटी का कंसर्न सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि उनका डेटा, उनका इंफॉर्मेशन ये पब्लिकली हो जाए, पब्लिकली अवेलेबल हो जाए, ब्रीच हो जाए। तो हर एक कंपनी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिवली ध्यान रखता है उनके डेटा पे, उनके इंफॉर्मेशन पे। एंड ऑब्वियसली अगर कंपनी को सिक्योरिटी मेंटेन करना है तो कंपनी को एथिकल हैकर्स का टीम जो है वो उस कंपनी में हायर करना पड़ेगा। सो वहीं से स्टार्ट होता है द जर्नी, द करियर ऑफ द एथिकल हैकर्स। The ethical hackers again as a trusted person who is appointed to provide the guard against the hacking attempt. मैंने आपको पहले ये चीज़ भी बताई थी कि एथिकल हैकर्स क्या काम करता है एग्जैक्टली, कि वो आपके हैकिंग के अटैक्स को प्रिवेंट करता है, आपके कंपनी का डेटा हैक होने से बचाता है। टुडे देयर इज द वर्ल्ड वाइड डिमांड ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल नाउअडेज, कि हर एक कंपनी को एथिकल हैकर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का जरूरत पड़ता है, क्योंकि कोई कंपनी नहीं चाहेगा कि मेरा डेटा हैक हो जाए या पब्लिश हो जाए जिससे मेरे कंपनी का बहुत सारा बदनामी होगा और मेरे कंपनी का बिजनेस जो है वो डाउन होगा। तो ऑब्वियसली ये होने से बेटर है कि कंपनी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को हायर करे। कॉर्पोरेशनल नीड द ट्रेन एंड प्रोफेशनल्स टू इंश्योर देयर इंटरनेट, इंट्रानेट, वीपीएन नेटवर्क एंड डेटाबेस इज सेफ। हर एक कंपनी को आईटी के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का ज़रूरत होता है ताकि वो कंपनी इंश्योर रहे, भरोसेमंद रहे कि मेरा जो भी डेटा है, मेरा जो भी नेटवर्क है, सर्वर से, वो सब सेफ है और सिक्योर है। इन नाउ ऑनगोइंग बैटल अगेंस्ट साइबर टेररिज्म का अगर आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, पहले जो लड़ाई लड़ी जाती थी, जो बैटल होते थे, वो ग्राउंड पे सबसे पहले परफॉर्म होते थे। बट नाउअडेज इफ वॉर बैटल की हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहले ऑनलाइन वॉर स्टार्ट होती है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, विद द हेल्प ऑफ न्यूज़, विद द हेल्प ऑफ साइबर एक्टिविटीज़। एक कंट्री दूसरे कंट्री को अटैक करता है। तो ये चीज़ मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टेड है बताना चाहूँगा अपने ब्राउज़र में। ये एक वेबसाइट है लाइव साइबर अटैक्स, अगर आप यहाँ पे ढूंढोगे लाइव हैकिंग अटैक, थ्रेडबट नाम का एक वेबसाइट है। दिस वेबसाइट विल शो यू द लाइव हैकिंग अटैक ऑन अगेन द एंटायर वर्ल्ड, कि दुनिया के कोने में हर एक कंट्री पे कैसे अटैक हो रहे हैं, कब अटैक परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इसके जैसी और भी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, यू कैन एक्सप्लोर विद गूगल। Different websites we can check here. This is the map of HTTPC. Just give me for a sec. यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि कितनी वेबसाइट, कितनी कंपनीज या कितनी अलग अलग कंट्रीज पे अटैक चल रहे हैं, कौन सा कंट्री अटैक कर रहा है, कौन से कंट्री को टारगेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रेड डॉट में हाईलाइटेड पता चल रही है। लेफ्ट साइड के कॉलम में कंट्रीज के नाम भी आ रहे हैं, विद टाइमिंग आ रहा है। ठीक है, कि कौन सी कंट्री पे अटैक कर रहा है, कैसे कर रहा है। सो ऐसी बहुत अलग अलग वेबसाइट्स जो है गूगल पे अवेलेबल है टू गेट द लाइव हैकिंग
attack information. So come to the point again कि साइबर अटैक्स जो है ये बिल्कुल भी कभी थमे नहीं है। जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, द यूज़ ऑफ इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, वैसे ही हैकिंग के अटैक्स, साइबर अटैक्स भी बढ़ रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर रिस्क ऑफ इंटरनेट, रिस्क ऑफ द डिवाइसेस बढ़ेगा तो हर एक कंपनी को एथिकल हैकर्स का ज़रूरत रहेगा। नाउ फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली यू विल गेट द एथिकल हैकर्स? द क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है, हाउ डू आई बिकम द एथिकल हैकर, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मैं कैसे एथिकल हैकर बन सकता हूँ? सो जस्ट विद इन 2 minutes योर डाउट विल बी रिजॉल्व। वॉट इज द प्री रिक्वेस्ट ऑफ द एथिकल हैकिंग? एथिकल हैकिंग की प्री रिक्वेस्ट क्या होती है, क्या वो चीज़ें जो आपको समझना है, पढ़ना है, ताकि आप एक बहुत अच्छे एथिकल हैकर बन सको या आपका करियर एथिकल हैकिंग में परफेक्ट कर सको। द फर्स्ट प्री रिक्वेस्ट इज टू लर्न द लिनक्स एंड यूनिक्स। अब लिनक्स क्या है? बेसिकली लिनक्स इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कर्नल है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल एंड सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। If you are able to see my screen here, I am using the Linux operating system again. ये जो Linux operating system है ये दुनिया का सबसे strong and powerful operating system माना जाता है। You can see here in my terminal, here are lot of tabs are opens. So ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख रहे हो काली लिनक्स, ये एक वेपन माना जाता है, हथियार माना जाता है, इवन फॉर द सिक्योरिटी रिसर्चर्स, फॉर द एथिकल हैकर्स एंड इवन फॉर द हैकर्स। वाई? द रीजन इज कि इसमें अगर आप एप्लीकेशन देखोगे, सॉफ्टवेयर देखोगे, जैसे विंडोज में आपके नॉर्मल सॉफ्टवेयर आपको ओपन होते हैं, जैसे नोटपैड है, कैलकुलेटर है, फोटोशॉप है, एमएस ऑफिस है, बट काली लिनक्स में हर एक सॉफ्टवेयर किसी अलग इंटेंशन से बनाया जाता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए किसी यूनिवर्सिटी का, किसी कंपनी का, किसी वेबसाइट का, तो उसके लिए इतने अलग अलग टूल्स है। स्पाइडरपुट है, किसी का माइक ऑन है, could you please turn off your mic? I'll give the time, sufficient time for answering questions, but किसी का समीर, if I'm not wrong, your mic is turn on. I request you please put off your mic. So here are the information gathering tool, vulnerability assessment, web application analyst, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग टूल काली लिनक्स आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। पासवर्ड अटैक के लिए अलग टूल्स है, वाईफाई हैकिंग के लिए अलग टूल है, रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सप्लॉयटेशन, स्नीफिंग एंड स्पूफिंग। सो दिस इज द काली लिनक्स वेयर यू आर गेटिंग ऑल इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी आर इनबिल्ट इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज द प्री रिक्वेस्ट ऑफ वाई वी शुड नो अबाउट द काली लिनक्स, कि लिनक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि लिनक्स जो है, एज आई हैव मेंशन हियर, कि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। एंड ट्रस्ट मी, 99.9% वर्ल्ड लार्जेस्ट सर्वर जो है, जिसको हम लोग सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं, दोज ऑल आर यूजिंग द लिनक्स। इसके लिए लिनक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड जो प्री रिक्विजिट्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काली लिनक्स या लिनक्स पढ़ने से ही आप एथिकल हैकर बन पाओगे। एथिकल हैकर शुड अवेयर अबाउट ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, एंड्रॉयड, काली लिनक्स, पैरेट लिनक्स, उबंटू, सेंटोस एंड मेनी मोर। तो बेसिकली एथिकल हैकर शुड अवेयर अबाउट ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली कॉम्प्रोमाइज सिस्टम। जैसे आपको पता है, हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था हाउ वी कैन मैनिपुलेट द रजिस्ट्रीज ऑफ द विंडोज इजीली। Now the third prerequisites of the ethical hacking comes to the networking concepts. Networking in the sense इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट में what kind of services are there, किस तरह से आप एक सर्वर और क्लाइंट जो मॉडल होता है इंटरनेट में, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, सर्वर क्या होते हैं, कौन से होते हैं, इन सारी चीज़ों का बेसिकली नेटवर्किंग का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडी आपको करना पड़ेगा। बिकॉज if you know there is the again a very large network behind your internet। अगर आप इंटरनेट को देखते हो तो इंटरनेट में बहुत बड़े अलग अलग टाइप के डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो चाहे आपके सर्वर्स हो या नेटवर्किंग डिवाइसेस में राउटर, स्विचेस, फायरवॉल हो। तो ये जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर अलग अलग तरह के पैकेट्स रोटेट होते हैं, पैकेट विच इज़ अ लॉजिकल फॉर्मेट ऑफ डेटा। ये सारी चीज़ें बेसिकली नेटवर्किंग, इफ़ यू वांट टू लर्न, आई वांट टू शो यू समथिंग अबाउट द नेटवर्किंग, कि इंटरनेट जो है आपका, इंटरनेट
बहुत वास्ट और बहुत ही लार्ज है। इसमें अगर आप देखोगे, आई एम गोइंग टू शो यू वन वेबसाइट अगेन विच इज़ अ क्वाइट इंटरेस्टिंग वेबसाइट, द इंटरनेट मैप। ये जो इंटरनेट मैप नाम का वेबसाइट है, इसमें आप ये जो डॉट्स देख रहे हो, जो सर्कल्स देख रहे हो, एवरी डॉट एवरी सर्कल इज अ डिफरेंट वेबसाइट। अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करूँ, लार्ज करूँ, एनहांस, now you will come to know the higher dots or higher domains are google.com, facebook.com, youtube.com, yahoo.com। एंड अगेन अगर मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ, जूम करूँ, देन यू विल कम टू नो द dell.com, 1and1.com। जो जितनी भी दुनिया में वेबसाइट्स आपकी चल रही है आज के डेट में, हर एक वेबसाइट ये एक डॉट है। तो आप सोचिए हाउ बिग इंटरनेट इज़, हाउ लार्ज इंटरनेट इज़। तो ये इंटरनेट का ये सारा स्ट्रक्चर आपको समझना होगा, इंटरनेट कैसे काम करता है वो समझना होगा, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट, नेटवर्किंग की डिवाइसेस आपको समझना होगी। So this is one of the most important prerequisites of the ethical hacking, that you should come to know the networking concepts. The knowledge of networking is essential, ये बहुत important है। as again on a daily you are using the social medias, अब 24/7 आप इंटरनेट से टच में हो, आप अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, ट्विटर, एंड इवन यू आर यूजिंग अ नेट बैंकिंग, आप नेट बैंकिंग ऑनलाइन यूज़ करते हो। तो आपका डेटा, आपकी पोस्ट, आपका इंफॉर्मेशन ये सिक्योर है या नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। बट अगेन बिफोर दैट आपको ये सारी स्पेशल स्किल्स, ये सारा नॉलेज आपको सबसे पहले गेन करना पड़ेगा। If you are again well aware of the all working of the internet and network, you can configure the out of most of the problem solving from the network security। नेटवर्क को भी सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम एक एथिकल हैकर का ही होता है। सो ये सारी जो प्रीरिक्विजिट्स है, इफ यू गेन दिस ऑल काइंड ऑफ प्रीरिक्विजिट्स, then only you can be able to become a good ethical hacker and you can work for any industry। अब एथिकल हैकर्स का जो जॉब होता है वो दो तरीके का होता है। बेसिकली यू कैन वर्क फॉर एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक किसी कंपनी के लिए आप एज ए एथिकल हैकर काम कर सकते हो, एंड एट दैट सेम टाइम पैरेलली आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हो, जिसको हम लोग बेसिकली फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग एथिकल हैकर जो होते हैं वो कंपनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बट उनके लिए जॉब नहीं करते। दे विल फाइंड आउट द लूप होल, वो कंपनी के लिए लूप होल फाइंड करेंगे, उस कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो कंपनी जो है उनके नेटवर्क को, डेटा को सिक्योर रख सके। तो एथिकल हैकर दोनों तरीके से काम कर सकता है, एक तो वो जॉब भी कर सकता है या वो फ्रीलांसिंग भी कर सकता है। इट इज ऑल ऑफ अबाउट द अर्निंग। बट अभी एज ऑफ नाउ हमने पहले ये समझना है कि एथिकल हैकर्स का नॉलेज जो होता है, जो स्किल होती है वो कौन सी होती है, किस तरह से होती है। तो आपको सबसे पहले इन सारी चीज़ों का नॉलेज गेन करना पड़ेगा। एज आई टोल्ड यू, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेशली अबाउट द लिनक्स एंड द नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स। Now it's a time to show you, let me show you one a small demonstration। एक एथिकल हैकिंग और हैकिंग का अटैक जिसको फिशिंग कहा जाता है। फिशिंग ये जो है ये बहुत ही वेल नोन अटैक है। ये हैकिंग का अटैक जिसको यूज़ करके हैकर जो है क्रेडेंशियल, पासवर्ड जो है इनको स्टील करते हैं, पासवर्ड चुराते हैं। तो फिशिंग अटैक बहुत ही वेल नोन अटैक है, बहुत ही पावरफुल अटैक है, जिसमें आपकी जो सोशल मीडिया के अकाउंट है या बैंकिंग वेबसाइट के अटैक है, इनको कैप्चर किया जा सकता है या इनको हैक किया जा सकता है। तो फिशिंग अटैक परफॉर्म करने के लिए वैसे तो बहुत अलग अलग तरीके हैं, बट एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग थ्रू माई टर्मिनल। ये जो मेरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं इसमें अपना टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, एंड बेसिकली ये टर्मिनल ही है जो आपको अलाउ करता है टू परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट हैकिंग अटैक्स। सो गिव मी वन सेक ओनली। हेयर इज वन टूल, एक सॉफ्टवेयर मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है जिसका नाम है रावना। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो टूल है, बेसिकली ये आपको हेल्प करेगा टू परफॉर्म द फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक बेसिकली क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। कि आप किसी भी कंपनी का, किसी भी वेबसाइट का क्लोन बना सकते हो, डुप्लीकेट पेज बना सकते हो, और वो डुप्लीकेट पेज, वो डुप्लीकेट क्लोन आप आपके विक्टिम को बेचते हो, आपके टारगेट को बेचते हो। अगर वो विक्टिम, वो टारगेट उस वेबसाइट को ओपन करेगा
वहाँ पे उसको क्रेडेंशियल पासवर्ड पूछा जाएगा। वो अगर पासवर्ड एंटर करता है तो वो इंफॉर्मेशन, उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड आपके सर्वर पे, आपके सिस्टम पे स्टोर हो जाता है। सो ये फिशिंग अटैक बहुत ही इंटरेस्टिंग अटैक है। हेयर आई एम गोइंग टू रन दिस टूल, दिस सॉफ्टवेयर मैं रन करने जा रहा हूँ। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी माई स्क्रीन क्लियरली। अगेन आई एम गोइंग टू जूम इट। सो दिस इज द टूल, द स्क्रिप्ट ऑफ रावना। ये रावण नाम का टूल मैंने लॉन्च किया है, ओपन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 टूल्स अलग अलग फॉर्मेट में मेरे पास अवेलेबल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, गूगल, गिटहब, पेपर, स्पॉटिफाई, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, एडोब, नेटफ्लिक्स और बहुत सारे, आपकी याहू भी इसमें इंक्लूड है। सो एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, जैसे इंस्टाग्राम आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। यूथ आर स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम ऑन इंस्टाग्राम, सो वी विल ट्राई टू अटैक ऑन इंस्टाग्राम ओनली। यहाँ पे जो आपका इंस्टाग्राम है, इसका नंबर 2 नंबर है, 2 नंबर्स। सो आई एम गोइंग टू गिव द 2 नंबर है, मैंने एंटर कर दिया। देन इट इज आस्किंग मी द 2 डिफरेंट ऑप्शन, वन इज लोकल होस्ट, अनदर वन इज क्लाउड, कि ये जो वेब पेज, फेक वेब पेज मैं बनाना चाहता हूँ, ये मेरे लोकल कंप्यूटर पे बनाना है या क्लाउड पे बनाना है। तो ऑब्वियसली मैं पहला ऑप्शन लूंगा ताकि मैं ये फेक वेबसाइट मेरे लोकल कंप्यूटर पे बना सकूँ। सो आई एम गिविंग द ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद वो मुझे पूछ रहा है पोर्ट सिलेक्शन। अब अगर आपको नेटवर्किंग का अच्छा नॉलेज है तो आपको पता होगा देयर आर 65,536 पोर्ट्स आर अवेलेबल, जिनको आप हैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो या तो मैं रैंडम पोर्ट सेलेक्ट कर लूँ या तो कस्टम कर लूँ। तो मैं रैंडम पोर्ट सेलेक्ट करता हूँ, जो भी वो सेलेक्ट करेगा, या ये टूल अपने आप एक पोर्ट सेलेक्ट कर लेगा। नाउ इफ यू आर सीइंग कि यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे एक लिंक, एक URL मुझे मिला है। ये URL जो है http://127.0.0.1 पोर्ट नंबर है 8879। ये पोर्ट नंबर रैंडम मुझे मिला है इस टूल में। और ये जो IP एड्रेस है 127.0.0.1, बेसिकली इफ यू नो द नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, ये लूप बैक IP एड्रेस है, मेरे खुद के सिस्टम का IP एड्रेस है। तो अगर मैं इस लिंक को कॉपी करता हूं और किसी को भेजता हूं, किसी को इन द सेंस ऑब्वियसली जो भी मेरा टारगेट रहेगा, तो आपके फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं ये लिंक जो है मैं कॉपी कर रहा हूं और किसी और को नहीं भेज रहा हूं, बल्कि मैं अपने ही कंप्यूटर पे इस लिंक को ओपन करने जा रहा हूं। क्योंकि जो एथिकल हैकर है वो ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। दे कैन नॉट परफॉर्म द अटैक टू एनी अननोन वेबसाइट, दे हैव टू अटैक ऑन योर ओन डिवाइस। तो ये मैं अपने ही डिवाइस पे अटैक करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने ये लिंक को ओपन किया, आप देखिए बिल्कुल इंस्टाग्राम जैसे दिखने वाला पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे मुझे लॉगिन डिटेल पूछा जा रहा है, मैं यहाँ पे लॉगिन डालता हूँ, जो भी मेरा यूज़र नेम पासवर्ड है। जैसे ही विक्टिम यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन का बटन दबाएगा, इमीडिएटली ओरिजिनल इंस्टाग्राम के पेज पे आप आ जाते हो, ओरिजिनल इंस्टाग्राम। तो ऑब्वियसली जो जिसने पासवर्ड एंटर किया है विक्टिम, वो सोचेगा कि शायद मेरा पासवर्ड गलत हुआ रहेगा। बट ये चीज़ करते हुए अगर आप आपके टर्मिनल पे देखोगे, तो टर्मिनल जो आपका सर्वर है, देयर आर मोस्ट डेंजरस थिंग्स आर गोइंग ऑन। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्लियर लेटर्स में यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो सेव हो चुका है। दैट मीन्स कि मेरा जो अटैकर, मेरा जो विक्टिम था, जो मेरा टारगेट था, जिसको मैंने लिंक भेजा था, वो जो लॉगिन करेगा, जो क्रेडेंशियल्स एंटर करेगा, वो आपके स्क्रीन पे आ जाता है। इमीडिएटली हैकर कैन गेट दिस डिटेल एंड ही कैन एक्सेस दैट सोशल मीडिया और एनी अदर प्लेटफॉर्म इमीडिएटली। अब आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि हैकिंग ये तो अगर क्राइम है, इफ इट इज़ इलीगल, तो मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर क्यों कर रहा हूँ। So basically let me explain, if you are using a social media platform like WhatsApp, Telegram, Facebook, तो आपको हर दिन आए दिन नए नए लिंक्स जो है वो अननोन ग्रुप में अननोन नंबर से भेजे जाते हैं। कभी अमेजोन पे आपको ऑफर बताया जाता है 100 रुपये में आईफोन लीजिए, कभी आपको जॉब जो होते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, जैसे घर बैठे 25,000 रुपये महीना कमाइए या 10,000 रुपये पर डे कमाइए, ऐसे अलग अलग ऑफर्स आते हैं। तो वॉट एवर द स्कीम ऑफर्स यू आर गेटिंग ओवर द इंटरनेट, इट मे बी अ वेरी बिग स्कैम। आपको ऐसी लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है। यू हैव टू अवॉइड दैट ऑल काइंड ऑफ फिशिंग लिंक्स। वो लिंक फिशिंग लिंक हो सकता है जिसमें आपका इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रीच हो सकता है, हैक हो सकता है। सो दैट वॉज द इंटेंशन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल, कि आपको ये फिशिंग लिंक का सीरियसनेस पता चले। किसी भी लिंक को ओपन करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि वो लिंक फिशिंग लिंक नहीं है।
So this was the phishing attack which we have performed with our using Kali Linux. Now again come to our discussion, whatever we was discussing about ethical hacker. तो एथिकल हैकर ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि किसी भी कंपनी में फिशिंग अटैक ना हो, किसी भी यूज़र को किसी भी ईमेल में फिशिंग लिंक ना आए, या अगर लिंक आता है तो वो एथिकल हैकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू कीप सिक्योर ऑल कंपनीज नेटवर्क एंड ऑल थिंग्स. तो ये जो एथिकल हैकर्स होते हैं ये अगेन बोथ आर सेम, जैसे एक हैकर है और एथिकल हैकर है, दोनों का स्कीम, दोनों का नॉलेज बिल्कुल सेम होता है, बट जस्ट देयर इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन. जो इंटेंशन होता है हैकर का वो सिक्योरिटी को ब्रेक करना होता है और वो इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जबकि एथिकल हैकर जो होता है उसका इंटेंशन प्योर होता है, उसको सिक्योरिटी मेंटेन करना होता है, सिक्योरिटी को बढ़ाना होता है. So this is a very quite difference between hacker and ethical hacker. Again, the knowledge and skills are the same for both. Here again the fourth important point, as I have mentioned, you should learn the Kali Linux operating system to again become an ethical hacker. अब Kali Linux सीखने के लिए आपको जो Linux कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ से शुरुआत करना पड़ेगी, तो जाके आप Kali Linux को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे, बिकॉज Kali Linux इज जस्ट अ फ्लेवर ऑफ द Linux family of the operating system. If you know, there is a one global certification provided by EC Council organization. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड EC Council नाम से जाना जाता है. EC Council एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है जिसको CEH कहा जाता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर. तो इसका एक सिनारियो मैं आपको बता दूं कि इफ यू आर हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट नाउ सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, तो यू शुड गो विद दिस ग्लोबल सर्टिफिकेट. ये अगर ग्लोबल सर्टिफिकेट अगर आप अचीव करते हो, सो एवरेज ओवर एंड ऑल 120 कंट्रीज में वैलिड ये ग्लोबल सर्टिफिकेट होता है. सो यू विल बी कॉल्ड एज एक्चुअल एथिकल हैकर. बट अगेन इफ यू समबडी आस्क मी कि ये एथिकल हैकर का सर्टिफिकेट कंपलसरी है, तो ऐसा नहीं है. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, स्किल एंड नॉलेज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा टू बिकम ए एथिकल हैकर. Even without a global certificate, you can be an ethical hacker. But somewhere you will require this certificate in some organizations to prove yourself that yes, you are certified, globally certified. So conclusion of this today's discussion is all about ethical hacker has received the criticism and the times from people who say that there is no such things as an ethical hacker. कि एज आई टोल्ड यू, हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग बोथ आर ए वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. हैकिंग बहुत जल्दी आपको अट्रैक्ट कर सकता है टू परफॉर्म द क्राइम एंड रॉन्ग इलीगल एक्टिविटीज, बट एथिकल हैकिंग दिस इज द प्योर सिक्योरिटी फील्ड वेयर यू कैन गेट योर वेरी गुड करियर प्लेटफॉर्म. So here is the conclusion, last line: to catch a thief, think like a thief. Similarly, to catch the hacker, you should think like a ethical hacker. So this is all about the security and ethical hacking. Again, for to get a very deep and good knowledge, you should use the internet platform where the all multiple information is available about the security and ethical hacking. So this is all about we have, and again about the cyber security and ethical hacking. So we are going to stop here, but before that, just to come to the your security information and again about your curiosity, I'm giving you sufficient time. So now it's a question and answer time. Please let me know if you have any doubt, any questions related to the today's seminar and session, so that we can answer all your doubts and questions.